Nestled in the heart of northern India, Haryana is a dynamic state with a population exceeding 27 million. Haryana is strategically located between the Aravalis and the Yamuna River, giving it fertile plains and the title of India's food bowl. Bordering the capital city of Delhi, Haryana has less than 1.4% of India's land mass. Haryana is home to 22 districts, 154 cities and towns, and over 7,000 villages. From the bustling streets of Gurugram to the historic town of Kurukshetra, Haryana is a state where mythology, agriculture, and innovation shape a unique identity, an epicenter of India's growth and cultural evolution. Hailing from the Mongoli Jatan village of the ancient land of Kurukshetra, Nayab Singh Saini was sworn in as the Chief Minister of Haryana on 17th October 2024. Here's how the state is progressing under his leadership. Chapter 5 of the Haryana Progress Report examines the various means through which the lives of Haryana's women have been transformed. Haryana has a female population exceeding 1,18,59,465, with women representing 46.78% of the state's population. Under the Beti Bachao Beti Padhao scheme, launched by Prime Minister Narendra Modi from the historic lands of Panipat in 2015, Haryana has improved the state's gender ratio to 916 females per 1,000 males. With a focus on fulfilling Prime Minister Narendra Modi's vision for a developed India by 2047, Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini believes that this nation's mothers, sisters and daughters will contribute most. मैं बताना चाहूँगा कि हमने महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण करना एक हमारा प्रमुख प्राथमिकता है. While the statistics tell us a part of the tale, this is how the Haryana government is working to improve the lives of women every step of the journey. Haryana has 25,962 operational Anganwadi centers spread across 22 districts of the state. These Anganwadi centers provide rural and maternal childcare services, which include nutritious meals for children, pregnant women and lactating mothers, as well as education on health, hygiene and free immunization of children. 4,000 playway schools have been established in Anganwadis across Haryana. Here's what the stakeholders have to say. मेरा नाम सुधा है. मैं अभयपुर गांव में रहती हूँ. मुझे आंगनबाड़ी से काफ़ी सुविधाएं मिली हैं जो कि मेरी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी हुई हैं. मेरे बच्चों के भी बच्चों को भी काफ़ी सुविधाएं मिली हैं. वो भी बहुत अच्छी थी. उनके हेल्थ के लिए भी ठीक था. और मेरे यहाँ से काफ़ी टेस्ट भी होते हैं यहाँ पे, और आयरन कैल्शियम की दवाई भी मिलती है यहाँ से. और हम यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री उनको धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव के बीच में ऐसा आंगनबाड़ी है जिससे कि हमें सुविधाएं मिल रही हैं. यहाँ पर होने से हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है. जब से मेरे बच्चे हुए तो बस प्रेगनेंसी के बारे में ही हमें यहाँ से सुविधाएं मिली हैं. बाकी बच्चों को जब से यहाँ से राशन मिलने लग गया, बस दलिया है, पंजीरी है और दूध है, खीर है. बच्चों की मिल्क बार वो आती है, चॉकलेट, वो जो आता है इनके पास सारा कुछ देते हैं. कई यहाँ खाना बनता है तो खाने के लिए भी बुलाते हैं. अपना टिफ़िन लेके आओ और यहाँ से खाने बच्चे के लिए. मेरा नाम शीला है. मैं यहाँ मेरे बच्चे भी आते हैं. हमें यहाँ से बहुत सुविधा मिलती है. हम यहाँ से हर चीज़ हमें पता भी मिलता है, समय पे क्या लेना है, क्या खाना है. यहाँ खीर भी बनती है तो मिलती है, राशन भी मिलता है, बच्चों को भी मिलती है, साफ सफाई भी है, दूध भी मिलती है, चॉकलेट भी मिलती है. सारा सुविधा यहाँ है. मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत से धन्यवाद. खाना जो हमारे पास आता है वो फ्रेश आता है और अच्छा आता है. हम वो बच्चों को देते हैं. आंगनवाड़ी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं गांव में, उनका पोषण, उनकी देख रेख के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि छोटे बच्चे ऐसा स्कूल में तो जा नहीं सकते. हमारे पास तो 2.5-3 साल का बच्चा आ सकता है हमारे पास यहाँ पे. तो उनके बच्चों के पोषण के लिए, उनकी देख रेख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मेरे को यहाँ पे 7 साल हो गए हैं. तो 7 साल में मैंने 45 को दिया. उससे पहले भी मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर में 65 जिनको बेनिफिट मिल सका है यहाँ पे.
तो मेन मोटिव यही था कि आंगनवाड़ी के प्रति जो लोगों का जो विचार था वो ये था कि बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती है, बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी स्कीम रही कि उन्होंने कुछ आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया। जैसे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में हमारी 1294 आंगनवाड़ियाँ थीं, जिनमें से 117 आंगनवाड़ियाँ प्ले स्कूल में कन्वर्ट की गईं। जो पहले आंगनवाड़ी खुले हुए थे उनमें पेरेंट्स नहीं आते थे बच्चों को लेके, क्योंकि उन्हें ये था कि आंगनवाड़ी में पढ़ाई नहीं होती। तो जब बच्चे पेरेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरह से उनके बच्चों का विकास करवा रहे हैं, खेल खेल में उनके बच्चों का स्तर कितना हाई जा रहा है, तो पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और बच्चों की स्ट्रेंथ पहले आंगनवाड़ी में रहती थी 5-10 बस, लेकिन आज की डेट में जो आंगनवाड़ी प्ले स्कूल की जो ग्रोथ है बच्चों की, वो कम से कम मेरी आंगनवाड़ी प्ले स्कूल में 30 से 35 बच्चों की ग्रोथ रहती है। इसमें मैं जो हमारी सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी स्कीम लाई आंगनवाड़ियों को ध्यान में रखते हुए कि जो बच्चों को भी उसका फ़ायदा मिल सके और महिलाओं को भी उसका फ़ायदा मिल सके। इन्होंने जो पहले हमारे 4000 प्ले स्कूल बनाए थे पूरे स्टेट में, पूरे हरियाणा में 4000 प्ले स्कूल बनाए थे, अब उनमें 2000 और प्लस करने जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स का हमें साथ मिल रहा है, बच्चों का हमें साथ मिल रहा है, बच्चों की ग्रोथ बढ़ रही है। तो सरकार की ये जो पहल है ना, ये सराहनीय है और उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का, जो वो ये स्कीम लेके आए। मेरा नाम नीतू है, मैं शाम कॉलोनी में रहती हूँ। यहाँ से मेरी पहली 2 बच्ची इस आंगनबाड़ी में आई थी पढ़ने के लिए, अब यहीं से वो पढ़कर आगे स्कूल में गए हैं। मेरे जो हस्बैंड है वो प्राइवेट जॉब करते हैं, मतलब हमारी इतनी सुविधा नहीं है कि हम प्राइवेट में बच्चों को डाल सकें। सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है, इस कारण हमने अपने बच्चे यहाँ पढ़ाए हैं। 2 बच्चे मेरे पहले ही यहाँ से पढ़ के जा सके, तीसरी मेरी बच्ची यहाँ पढ़ रही है, उसे भी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है और जितनी भी सुविधा है बच्चों की वो यहाँ दी जा रही है। सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिससे हमारे घर के जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, उनको मौका दिया जा रहा है और हर सुविधा भी दी जा रही है। तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम पूजा है, हम चावला कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ पे मेरी एक बेटी है, उसका नाम कनिका है, वो पढ़ती है। ये पहले आंगनवाड़ी था, यहाँ पे प्ले स्कूल बनाया गया है बच्चों के लिए। जो गरीब हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी सुविधा दे सकते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया भी जाता है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चों के लिए सुविधा की गई आंगनवाड़ी से प्ले स्कूल बनाने के लिए। In the past 10 years, the government of Haryana has established 29 new colleges for women. This brings the total government colleges dedicated to women to 35 in Haryana. This is the Sushma Swaraj Government College for Girls in Haryana, one of the colleges ensuring access to higher education for women. Inaugurated in 2023, this is how the Girls' College has become a beacon of hope for Haryana's youth. यह कॉलेज मुझे चुनने में बहुत आसानी हुई। मेरा पहले ही मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था। मैं सरकार के द्वारा बहुत पसंद थी। मार्च 2023 में इस कॉलेज का उद्घाटन हुआ था, तो ये कॉलेज मुझे बड़ी आसानी से प्राप्त हुआ। धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि जगह जगह सेक्टर 23, जिस तरह सेक्टर 2 में कॉलेज खुले हैं, सरकार हमारी इच्छाओं को पूरा कर रही है। लड़कियों को भी पढ़ने का एक मौका दे रही है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। हमें सरकार की जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब साकार होती हुई दिखाई दे रही है। जब मैंने 12th पास की थी तो मुझे इस बात का डर था कि पता नहीं किसी कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन सन 2023 जब मैंने 12th पास की तभी इस कॉलेज का उद्घाटन हुआ तथा मुझे ये कॉलेज बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। सरकार ने इसके साथ साथ परिवहन की भी बहुत अच्छी सुविधा दे दी है। हमारे कॉलेज जब मैंने एडमिशन लिया तभी से उन्होंने पास की सुविधा भी उपलब्ध कर दी। सीधा हमारे कॉलेज से सीधा हमारे घर तक के लिए मतलब कि बसों की सुविधा आसान कर दी गई है। हर साल हमें पास बना के दे दिया जाता है बिना किसी हड़बड़ाहट के। तो मैं सरकार की कार्य से बहुत खुश हूँ। टीचर भी बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में और यहाँ की
सब चीज़ में मतलब टीचरों ने बहुत अच्छा काम करा है, गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा कर रही है। हमें पढ़ने के लिए ना कोई कॉलेज नहीं मिला था जिससे हम मतलब कहीं और जाएं, तो ये कॉलेज हमारे घर के पास में है, जिससे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस भी लगवाई गई है जिससे हमें कोई मतलब बहुत आसानी रहती है घर से घर कॉलेज तक आने में। लड़कियों के लिए बहुत उपयोग चीज़ें करी है कॉलेज में, जो चीज़ पहले नहीं थी अब पहले बहुत बेहतर बनवाई है। तो हरियाणा बेटियों को हमारे लेवल ऊपर तक पहुंचाना चाहता है। जो बच्चे पढ़ें, अच्छे से नंबरों से पास हों, अपने परिवार को, अपना सबका नाम रोशन करें, कॉलेज का नाम रोशन करें। तो सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, ऐसे मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसा काम करें। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी सबसे ज़्यादा हमारे स्पोर्ट्स के मामले में भी गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे लिए बहुत सारे अवसर निकलवा रखे हैं। कॉलेजों में सरकार ने हमारे लिए यहाँ पे बहुत से हेल्थ चेक कैंप लगवाए हैं, हमारे लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए हैं सरकार की तरफ से। और सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बहुत काफ़ी हद तक सही कर दिया है। और हम चाहते हैं कि ऐसे कॉलेज बल्लभगढ़ में और खोले, लड़कियों को शिक्षा के मामले में और आगे ऊंचाइयाँ मिलती रहे, छूती रही लड़कियाँ ऊंचाइयों को। और हम चाहेंगे कि और भी ऐसे कॉलेजों में और भी ऐसी सुविधाएं आती रहे, और भी कॉलेजों में अच्छी अच्छी सुविधाएं सरकार की तरफ से, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन लेने का मोटिव यही था कि मेरे को गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि बॉयज़ कॉलेज में इतना मतलब वहाँ का बिहेवियर, वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा नहीं होता। और हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत सपोर्टिव टीचर हैं। गवर्नमेंट ने कॉलेज खोल के बहुत अच्छा किया, लड़कियों का बढ़ावा दिया, लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कॉलेज ओपन किया है, और मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूँगी। गवर्नमेंट ने लड़कियों की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट भी कर रखा है, उस मतलब जो बस पास भी करा रखे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लड़कियों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, घर से आना जाना गवर्नमेंट की तरफ से होता है, गवर्नमेंट की बस जाती हैं, लड़कियाँ उसमें सेफली आ सकती हैं। और मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, इस कॉलेज का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। This college started in the year 2018 with a mere strength of 350 students, and in just 6 years of its establishment, it has grown to a phenomenal level, and now we have a strength of more than 1650 girl students who are studying in this college, and they are coming from as far as Mohna, Praladpur, Manjhavali, Chandavali, Samaypur, apart from Ballabgarh sectors. And this college is established right in the middle of the Ballabgarh city, and it is catering to a whole lot of girls. We have both graduate and postgraduate classes running in this college, and the girl students are benefiting a lot because we have science, commerce and arts streams in this college. The government is trying to give a lot of facilities, you can say, for the girl students. We have a fully equipped and fully air-conditioned library with more than 3,000 books. We have a fully air-conditioned girls' common room for the students, canteen facility, labs. We have language labs, we have computer labs, we have smart classrooms, we have a fully furnished multi-purpose hall for all sorts of extracurricular activities that the girls like to take part in. We have a fully developed sports ground, and just recently in the month of February, sports meet was held in the college with more than 400 students, girl students participated in that sports meet. And the government is trying to do a lot for the girl students, providing such a good college with all the modern facilities for them, a safe environment which is conducive to their study, and all the subjects are offered for the students, and we are trying our best to make it grow even more. Haryana had given women 50% representation in Panchayati Raj institutions, a historic step to improve women's representation in decision-making bodies. This is how the women sarpanches are transforming their villages. Meet Manisha,
the 38-year-old Sarpanch of the Nangal Shehbazpur village, with a population of 2,500. This is Pooja Yadav, the Sarpanch of Gangaicha Ahir village, with a population of nearly 3,500 people. And this is Priyanka Jangda, the 29-year-old Sarpanch of the Kehtiwas Dhani Arihan village, with a population of roughly 1,000. These women are using their position as Sarpanch to become the voice of their village and a means to more significant development. मैंने मेरे गांव के लिए तकरीबन कार्य किए हैं, जिसमें सबसे जो अहम कार्य थे, जो मेरे गांव में सीवरेज की समस्या थी, तो मैंने सीवरेज लाइन डलवाई है और तकरीबन काफ़ी कच्ची सड़कें, कच्चे रास्ते थे, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, तो उनको मैंने पक्का करवाया है। और एक जो है स्ट्रीट लाइट की जो अंधेरी गलियाँ होती थी काफ़ी मेरे गांव में, तो सोलर पैनल के द्वारा स्ट्रीट लाइटों का भी मैंने प्रबंध करवाया है। और माता सावित्रीबाई फुले से प्रेरित होकर, जो कि हमारे भारत देश की प्रथम शिक्षित महिला थी, उनसे प्रेरित होकर एक मेरा स्कूल था जो कि कुछ रीजन बस थोड़े टाइम के लिए रुक गया था, उसको मैंने दोबारा से वो ओपन करवाया है और सभी तबके के वर्ग के बच्चों के लिए है, जिसमें फ़ीस है जो कि ना के बराबर है। मेरे जो गांव की लेडीज़ें थी बहुत मतलब निकल के नहीं आती थी, मतलब हर तरह से अपने आप को दबा करके रखती थी। जब से मैं आई हूँ और उनको मतलब शिक्षित होने के नाते उनको कोऑपरेट भी करती हूँ, और एक मैंने SHG अपने ग्रुप खोला है, उसमें मैंने 1/3 लेडीज़ों को समथिंग जोड़ के रखा है। उसमें हम वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके अपनी सहायता स्वयं करती है, ना कि भाई उन्हें किसी पुरुष पर आश्रित होना पड़ता है। तो मेरा तो मेन रीज़न यही रहेगा कि मेरे पूरे गांव को और तरक्की पे लेकर के जाऊं, और मेरा जो लेडीज़ है गांव की, उनको और भी बाहर निकल करके वो आए। सब हमने क्या है, लाइब्रेरी बनवाने का काम किया है कि बच्चे वहाँ जाकर शांति से आराम से, जिनको बाहर दूर तक ना जाना पड़े लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो हमने गांव में लाइब्रेरी का निर्माण किया है उस चीज़ के लिए। बाकी रास्ते का किया है, और साफ़ सफाई के लिए रोज़ मतलब डेली बेसिस पे कूड़ा उठवाने का भी काम कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे गांव की सफाई का काम करवा रहे हैं। जो सड़कें कच्ची थी कि भाई मतलब किसी को खेत में जाने का दिक्कत हो रही थी, वो खेतों का रास्ता बनवाया है। गांव में बड़े बुड्ढों के बैठने के लिए चौपाल नहीं थी, तो उनके लिए चौपाल का निर्माण करवाया गया है। बाकी तो जो रेगुलर बेसिस पे काम होते रहते हैं, जहाँ लाइटें नहीं थी वहाँ लाइट्स लगवा रहे हैं, और कैमरे का काम चल रहा है कि वो काम हो जाए। इतनी कम उम्र में सरपंच बनने के लिए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली सोच रही हूँ कि ये गांव का योगदान रहा है कि मतलब उन्होंने मौका दिया है, नहीं तो थोड़ी बड़ी लेडीज़ को भी वो कर सकते थे, उनको तो पढ़ी लिखी है, कुछ अच्छा करेगी। तो ये चीज़ का बदलाव आया है, ये सरकार के द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया है कि मतलब खाली सरपंच ही घर से बाहर नहीं निकल रही है, और लेडीज़ भी सरपंच के साथ बाहर निकल रही है। मुझे वो सबसे अच्छे CM लगे हैं। सबसे अच्छी तो नौकरी वाली चीज़ लगी है कि हमारे गांव में से बहुत सारे बच्चे नौकरी लगे हैं, तो उन्होंने मतलब वो ऐसे उनका नज़रिया मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने मतलब गांव को गांव नहीं देख रहे हैं, वो गांव को पूरा शहर बना रहे हैं। पक्की सड़कें, दिन रात लाइटें हो, वहाँ CCTV कैमरा हो, क्राइम्स कम हो, जो 112 की सर्विस वो बहुत अच्छी है, मेरे गांव में बहुत अच्छी है। औरतों को आगे बढ़ाने के लिए हमें आरक्षण दिया है, क्योंकि आरक्षण नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कोई महिला आगे आती। आरक्षण दिया है कि जरूरी है महिला आगे आए, वो आएंगी तो सीखेंगी, वो सीखेंगी तो दूसरों को इंस्पायर करेंगी। हमारे यहाँ पे 2 गांव है, खातीवास एक धानी आहिर है, और इसमें स्कूल का काम, पंचायत घर, शमशान घाट पूरा नया बना है, वाटर कूलर, स्ट्रीट लाइट, नए रोड बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है। जो स्कूल है वो रिनोवेट कराया गया है, जिम बनाया गया है, ताकि जो गांव के बच्चे उनको बाहर ना जाना पड़े और अपना स्वास्थ्य का वो अच्छे से ध्यान रख सकें। लोगों की सोच में थोड़ा बदलाव आया है। The Haryana government has taken several steps to empower women financially and improve their contribution to the formal workforce. Haryana Chief Minister Naib Singh Saini has appointed 705 new female medical officers in March 2025. Since 2023, Haryana has made 2 lakh Lakpati Didis out of a target of 5 lakh. Haryana has 64,500 self-help groups eligible to stamp duty exemptions on a loan up to Rs 5 lakh. This is the Sarthak Mahila Self-Help Group,
which has been operating in Chandigarh since 2017. This women's group received a loan of rupees 8 lakh in 2020 and installed a sanitary napkin machine. Today, it employs 50 women. Here's their story. हमारा जो ये सैनिटरी नैपकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो आज 2025 तक आते आते हरियाणा के साथ साथ हिमाचल, पंजाब और अभी रिसेंटली कुछ दिन ही हुए हैं, पिछले महीने ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट बंगाल, राजस्थान और उड़ीसा ऐसी जगहों पे हमारा सैंपल गया है, क्योंकि जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है वो हर्बल नैपकिन है, उसकी जो आयुर्वेदिक क्षमता है वो ज़्यादा है, वो महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है। तो इस काम को करने के साथ साथ मेरे साथ 50 महिलाएं और जुड़ी है, जिन्होंने अपनी आजीविका को इस कार्य में जुड़कर बहुत सक्षम बनाया है और वो आज हर कार्य के लिए हर क्षेत्र में मेरे साथ जुड़ी हुई है। इस काम को करने के बाद पहले जो था कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते थे, और सैनिटरी नैपकिन का कार्य शुरू करने के बाद आज हर महिला की, और ख़ासकर जो ग्रुप 10 महिलाओं का सार्थक एसएचजी का जुड़ा हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति आज बेहतर हो चुकी है कि हमें हर महीने प्रत्येक महिला को 2 से 3 हज़ार की आजीविका मिल रही है। The same self-help group has diversified to make pickles, clothes and other items. 100 ग्राम से शुरू करा, हर प्रकार का चार बनाती हूँ मैं, जिसमें मैंने 4 चटनी है, सारी मेरा नमक है, और ये शुगर की दवाई भी मैंने 6 महीने लगे उसमें तैयार करने में। घर में बेले रहते थे, काम करने वाला तो 2 घंटे में सारा काम समेट लेता है, बेले रहते थे, फिर सोचा कि घर में अकेले रह के क्या करें, थोड़ा सा इस ग्रुप में जुड़ने से बाद हमने ये काम शुरू करा। जहाँ जहाँ भी हमें ना सरकार कहीं से ऑर्डर आता है, जैसे 2-3 दिन पहले मैसेज आ जाता है, फिर हमें जैसे पंजौर गार्डन हो गया, पंचकुला हो गया, चंडीगढ़ हो गया, स्टॉल लगाते हैं हम घर पर जाके। हमने ग्रुप के द्वारा, मिशन के द्वारा 6 लाख का लोन लेकर अपनी दुकान खोली है, जिसमें मैं कपड़ों की दुकान की सेल करती हूँ और हमारी इनकम भी काफ़ी अच्छी है। जब हम बाहर निकले, बैंक भी जाते थे, तो बैंक जाकर हमें पता लगा कि हमें कैसे क्या करना है। अपने ग्रुप से जुड़े सभी मेंबरों से एक दूसरे का आइडिया मिला, तो फिर हमें काम करने का मौका मिला। This is the Unnati self-help group in Rohtak. The women in this group work on hand block printing, tie and dye and sewing. हमने 2015 में समूह बनाए थे और समूह के बनने के बाद में हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत हमें हैंड ब्लॉक प्रिंट की ट्रेनिंग दिलवाई गई थी, जिसमें कि हम 10 बहनों ने 40,000 का लोन लेके और ये काम शुरू किया था। उसके साथ फिर और बहनों को भी हमने अपने साथ जोड़ा और पर पीस पे उन बहनों से भी काम करवाते हैं। हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत बहनों को लोन दिया जाता है, जो कि बहुत कम ब्याज पे है और छोटी छोटी पूंजी में वो किस्तों में वो जो लोन है वो वापस किया जाता है और वो बहनें लोन लेके अपना काम शुरू कर सकती हैं। और फिर वो जो तैयार माल है उनको फ्री एग्जीबिशन दिलवाना, वहाँ उनके रहने खाने का प्रबंध करना, ये सब हरियाणा राज्य आजीविका मिशन हमारी सहायता कर रहा है। हम भी 2016 में ये ब्लॉक प्रिंटिंग की ट्रेनिंग ली थी और वो सीखने के बाद हमें ये काम अच्छा लगा और अच्छा लगने के बाद फिर हमने सलाह कि भाई ये हम काम करेंगे, इस काम को हम आगे बढ़ाएं। तो धीरे धीरे फिर हमने कोशिश की, फिर हमें 40,000 का लोन लेके फिर हमने ये शुरुआत करी। पहले इतना कुछ नहीं था, मन की बात में मोदी जी ने चर्चा करी, उसके बाद हमारी चर्चा देश विदेश में होती जा रही है, तो हमें बहुत अच्छा लगा ये जान। समूह में जुड़ने के बाद जी हम पहले तो घर से बाहर ही नहीं जा रहे थे, मेन बात तो ये, अब हम बाहर भी जा रहे हैं, बैंकों का काम भी कर रहे हैं, 1-2 बार यहाँ रोहतक की स्टॉल और नज़दीक हो तो वहाँ भी जा रहे हैं। घर के भी मना नहीं कर दे, उन्होंने कहा आके काम देखा तो बोला अच्छा है, तो आप खुश हैं हमारे काम से भी। और घर में भी जी पहले समस्या थी भी नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। पहले कहते थे देना 100 रुपये 50 रुपये, अब हमारे पास होता है, बच्चे मांग ले भाई ये चीज़ चाहिए तो हम बेझिझक उन्हें दिला सकते हैं। In another initiative, the Haryana government aims to create 5,000 Namo drone Didis in the state. This central government scheme aims to train women with drones to provide agri-services such as spraying pesticides and fertilizers. So far, 100 women have been trained to become drone pilots and provided with free drones. This is how they are benefiting from the scheme.
मेरा नाम शालू रानी है। मैं हरियाणा राज्य के पलवल ज़िले के बड़ौली गांव से हूँ। मेरा सारा परिवार कृषि से जुड़ा हुआ है। मेरे घर में मेरे पति, 2 बच्चे और सास ससुर है। मैं मार्च 2024 में नमो ड्रोन दीदी बनी और इससे नमो ड्रोन दीदी बनने से मुझे एक नई पहचान मिली। पहले मुझे समाज में कोई नहीं जानता था, लेकिन मोदी जी की इस योजना से मेरी एक पहचान बनी है। अब सब मुझे नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं। इस योजना से सभी नमो ड्रोन दीदियों को बहुत लाभ हुआ है। इस योजना से हम आत्मनिर्भर बने हैं। हमारे परिवार की आजीविका और आय बढ़ी है। पहले मैं अपने परिवार के खर्चे में मदद नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से मैं नमो ड्रोन दीदी बनी हूँ, मैं अपने परिवार के खर्चों में सहभागिता निभा पा रही हूँ। इससे सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और उनका जीवन आसान हो गया है। कम लागत में ही हम ज़्यादा एकड़ में स्प्रे कर पा रहे हैं, जिससे हमारी फसलें भी बहुत अच्छे तरीके से हो पा रही हैं। मैं स्वयं भी खेतों में जाती हूँ, वहाँ फसलों पर स्प्रे करती हूँ। जैसे हमारे गन्ने की फसल है, उसमें व्यक्ति खुद जाकर स्प्रे नहीं कर पाता है, लेकिन हम इसकी मदद से बड़े आसानी से स्प्रे कर पाते हैं। उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे मानव को उसमें स्प्रे करने में दिक्कत आती है, और ड्रोन से वो हम बहुत आसान तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। ड्रोन का प्रशिक्षण लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और किसान को भी बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी बहनें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए और वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और आगे इसका बेनिफिट ये है कि सबसे बड़ी किसान भाइयों को जो मैं फ़ायदा बताती हूँ आपको, कि एक तो सबसे ज़्यादा समय की बचत होती है। अगर ड्रोन से अगर हमें नैनो यूरिया की स्प्रे करवानी होती है तो इससे समय की बचत है, पानी की बचत है। और एक किसान के माध्यम से मेरे को पता चला, जब हमने नैनो यूरिया की स्प्रे कर रही थी तो एक पत्ता लपेट बीमारी आती है, उसकी कोई स्प्रे नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ड्रोन जब हम उड़ाते हैं 3 और 5 फीट की ऊंचाई पे रखते हैं ना, तो इसकी हवा बहुत तेज़ आती है तो वो एक सुंडी होती है उसके लपेटी हुई, वो सुंडी नीचे गिर जाती है, तो वो नीचे गिरते ही पानी में वो मर जाती है। सबसे बड़ा किसान को फायदा है, एक तो इस चीज़ का है। ड्रोन से मैंने 3 लाख की इनकम करी है, और भी हमारी बहनें हैं जिसने 10,000 की करी है, किसी ने 20 की करी है। और दिन प्रतिदिन हरियाणा सरकार भी हमारे साथ जोर दे रही है कि आप ड्रोन को और आगे बढ़ाएं। ड्रोन दीदी योजना से मैंने अब तक 250 एकड़ से ज़्यादा स्प्रे किया है, और मैं अभी तक 1 लाख से ऊपर कमा चुकी हूँ, और मैं अपने घर का खर्चा चला सकती हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूँ। पहले मैं हाउसवाइफ थी, घर का काम बस और मतलब घर का काम ही था घर में तो, और बाहर जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं आगे बढ़ चुकी, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूँ, अपने घर का खर्चा चला सकती हूँ और अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। इससे जुड़ने के बाद ये है कि घर का खर्चा अच्छे से चल रहा है और बच्चों का पालन पोषण भी अच्छा है, और मतलब एक दूसरे की मदद करने में भी सहयोग होता है। To support women from BPL families, the Haryana government provides gas cylinders at ₹500, benefiting 49 lakh BPL families. This subsidy on LPG is transferred directly into the bank account of the eldest female family member, encouraging women to open bank accounts. मेरा नाम देवो है, मैं फतेहपुर बिल्लौज की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, मेरे 2 बेटी हैं और घर में सास ससुर हैं। जो सरकार ने हर घर गृहिणी योजना चलाई है, इसका बहुत लाभ हुआ है। हम 500 रुपये में सिलेंडर मिलता है, पहले 1900 का सिलेंडर मिलता था तो बड़ी दिक्कत आती थी, कटौती करनी पड़ती थी राशन में, बच्चों की फीस में। लेकिन सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है, इससे महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। हमें इसमें मेरा भी नाम है, हमें इससे बहुत लाभ हुआ है। 500 रुपये का सिलेंडर मिलता है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम सुनीता है मेरा, गांव फतेहपुर बिल्लौज है। पति का नाम मान सिंह सैनी है और मजदूरी करते हैं, और घर में 6 परिवार हैं। पहले तो भैया बहुत महंगा था, भरा जाता, दिक्कत आती, पैसा नहीं रहते, 800-900 का भरा जाता, और अब 500 रुपया में भरा जा रहा है। अब हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। सरकार के योजना में भैया 4 महीना पहले जुड़े थे, अब हमें बहुत फ़ायदा है सरकार की तरफ से। मेरा नाम नीलम सैनी है, मेरे पिताजी का नाम मान सिंह सैनी है, मेरी माताजी का नाम सुनीता सैनी है। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और हम 6 सदस्य हैं, और हम
इसी 6 महीने से हर घर गृहिणी योजना से जुड़े हुए हैं। हमें इसका बहुत लाभ है। इसमें 500 रुपये का सिलेंडर मिलता है। जो सरकार ने हमसे वादा किया था सिलेंडर देने का, वो सरकार ने वादा पूरा किया है। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं जवाहर कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा मकान नंबर 1716 है। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे खाते मुझे पहले सिलेंडर 800 का मिलता था, अब 500 का मिल रहा है। मैं सरकार से बहुत खुश हूँ इस बात से। घर घर गृहिणी योजना जब से चलाया सरकार ने, मैं इससे बहुत सहमत हूँ। मेरा खर्चा भी नहीं चल पाता था क्योंकि पति 8 ही हज़ार रुपये कमाते थे, उसमें घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई कुछ नहीं हो पाता था। अब सरकार से मैं बहुत सहमत हूँ। जब से ये सरकार योजना घर घर गृहिणी योजना चलाया, जब से महिलाओं को बहुत सुविधा है। जब से सरकार 2100 रुपये देने के लिए लागू किया, तब ये इससे बहुत घर खर्चा चलाने में और बच्चों की पढ़ाई में बहुत सहमत मिलेगी। सरकार भी बहुत अच्छी है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूँ। हरियाणा सरकार को भी, जो भी योजना चलाते हैं महिलाओं के लिए बहुत सुविधा होती है। 500 में सिलेंडर मिल जाता है, बहुत हमारा घर खर्चा चलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसे सरकार हर महिलाओं को ऐसे सोचती रहेगी, कोई सरकार नहीं सोचती, पर ये सरकार जब से आई है ऐसी योजना सोचती है। बहुत सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ। While improving the literacy, health and financial status of women is the Haryana government's priority, so is the safety of women. In a big step to address crimes against women, Haryana has 33 exclusive women police stations across 22 districts. These women's police stations are equipped with control rooms, female staff and constables to provide women with a safe environment. जब भी कोई डायल 112 पे फ़ोन करता है तो हमारे कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है और उनके पास इवेंट जनरेट होता है। वो उस कॉल पर विदिन 7 to 8 मिनट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो भी कोई कॉल करता है उसके संबंध में। दूसरी हमारी दुर्गा शक्ति है, जो जगह जगह कार्यक्रम, स्कूल कॉलेज है तो उनके छुट्टी के टाइम, उनके कॉलेज ओपन के टाइम, या जैसे कंपनी में, जहाँ भी कंपनी में महिलाएं काम करती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वो दिन रात गश्त करती हैं और उनको 112 के लिए अवेयर भी करती हैं। 112 इंडिया ऐप है हमारी, उसे डाउनलोड करवाते हैं और जिसको भी जो कोई मदद की ज़रूरत है, या स्कूलों में कॉलेजों में कोई मन चले ना घूम रहे हों, अगर कोई ऐसे मिलते हैं तो उन्हें महिला थाने में लेकर के आते हैं। ट्रिप मॉनिटरिंग में क्या है, जो कोई भी महिला रात को या कहीं भी, जब हमारे घरों में हमें ये रहती है कि भाई वो कहीं अकेले सफ़र पे जा रही है, कहीं उसके साथ कोई वारदात ना हो जाए, इसके लिए कंट्रोल रूम से अपना नंबर रजिस्टर करा करके जिस जगह जाना है वो जगह बतानी होती है कि इस जगह से मैं अपनी भाई यात्रा शुरू कर रही हूँ, या घर का कोई सदस्य भी करवा सकता है कि यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है और इस जगह जाना है, तो वो उसकी जो पूरी जर्नी है उसको हमारा कंट्रोल रूम मॉनिटर करता है। हर 15-20 मिनट में उससे पूछा जाता है कि आप सेफ़ हैं। अगर गाड़ी कहीं रुक गई है तो भी उनसे पूछा जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, गाड़ी किस वजह से रुकी हुई है। और वो अब जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है तो वहाँ हम अब उसको मतलब क्लोज़ कर देते हैं। मैं चेष्टा शर्मा हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं एज ए सुपरवाइज़र यहाँ पे काम कर रही हूँ, पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पे 112 में तकरीबन 200 लड़कियाँ काम करती हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सरकार ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। The Haryana government's actions prove that women's empowerment is a priority and a resolve for Chief Minister Naib Singh Saini. They are Haryana's success story. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.